آئیے اس ویڈیو میں ہم کوشچن بینک میں سبق نمبر 1 دو متغیری خطی مساوات کے سوال نمبر 2 الف اور بے کو سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 الف، اس سوال میں درج ذیل میں سے کوئی دو عملی سرگرمی مکمل کرنا ہے۔ ہر سوال میں 4 خالی چوکون ہوتے ہیں۔ ہر ایک چوکون میں قیمت لکھنے پر آدھا نمبر ملتا ہے۔ اس طرح سے سوال نمبر 2 میں جو عملی سرگرمی دی ہوئی ہوتی ہے، ہر سوال کے جواب میں اس عملی سرگرمی کو مکمل کرنے کے لیے 4 خالی چوکون دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ سوال نمبر 1 2x تفریق y برابر 4 کی ترسیم کے لیے جدول مکمل کرنا ہے۔ اس جدول میں ہم کو x کی قیمتیں، y کی قیمتیں اور محدد x y دیا گیا ہے۔ اس میں 4 خالی خانے ہیں۔ پہلا محدد ہمیں 0 اور -4 دیا ہوا ہے، y کی قیمت -4 ہے اور محدد میں x محدد جو ہے وہ 0 ہے، اس لیے یہاں پہ ہم 0 لکھیں گے۔ دوسرے محدد کے لیے x کی قیمت 2 ہم کو نظر آ رہی ہے، تو یہ ہم محدد میں پہلے x لکھتے ہیں، اس لیے 2 پہلے لکھیں گے۔ اور y کی قیمت ہمیں حاصل کرنا ہے، تو جو مساوات دی ہوئی ہے 2x تفریق y برابر 4، اس میں x کی قیمت 2 رکھیے، تو یہ ہو جائے گا 2 ضرب 2 -y برابر 4، 2 دونی 4 ہو جائے گا، تفریق y برابر 4 -y برابر 4، بائیں طرف سے 4 ادھر آئے گا، -4 ہو جائے گا، اور اس طرح سے -y برابر 0، تو y کی قیمت ہمیں 0 حاصل ہوگی، اور اس طرح سے محدد 2 0 ملے گا۔ تیسرا خالی چوکون جو ہے اس کے لیے x کی قیمت 3 دی ہوئی ہے، محدد 3 نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ y محدد بھی ہے، تو y محدد 2 ہم یہاں پہ دیکھ کے لکھ لیں گے، اسے حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ خالی چوکون کافی آسان ہوتے ہیں۔ بنیادی اعمال ہمیں پوری طرح سے اگر آتا ہے تو ہم آسانی سے اس کے جواب حاصل کر سکتے ہیں بنا کوئی غلطی کے۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 2۔ گرامر کے اصول سے حل کرنے کے لیے ذیل کی سرگرمی ہمیں مکمل کرنا ہے۔ یہاں ڈی ایم برابر دیا ہوا ہے، اور یہ قیمت جو ہے دراصل ادھر چاہیے تھا لکھی ہوئی، اس طرح سے 20 یہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اور یہ خانے ہمیں مکمل کرنا ہے، تو یہاں پہ یہ ترتیب بنائے رکھے۔ اب یہاں یہ پہلی قیمت جو ہے ڈی کی قیمت ہمیں چاہیے، تو یہ برابر کا نشان جو ہے وہ اس طرح سے دیا گیا ہے، تو ڈی کی قیمت ہم یہاں پہ مربع قالب کی جس طرح حاصل کرتے ہیں 4 ضرب 3 کریں گے، تفریق -2 کا 4 کے ساتھ ضرب ہوگا، تو یہ ہو جائے گا -2 ضرب 4، اور اس طرح سے ہمیں 12 جمع 8 جو کہ 20، تو اس طرح سے یہ خالی چوکون میں 20 لکھا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ڈی این کی قیمت حاصل کرنا ہے، تو یہ 16 چوک 64 ہوتا ہے منفی ضابطے کا، اور یہ 4 ضرب 4 تو ایک -4 ہے ایک مثبت 4 ہے، تو -16 اور یہ ضابطے کا منفی مثبت ہو جائے گا، اور اس طرح سے ہمیں 80 ملے گا، اور یہ خالی چوکون میں اس طرح قیمتیں ہمیں ملی۔ اب ہمیں ایم کی قیمت حاصل کرنا ہے، تو گرامر کے اصول سے ہمیں پتا ہے یہاں ایم متغیر آ گیا، تو ڈی ایم بٹے ڈی یہ استعمال کیا جائے گا۔ ڈی ایم کی قیمت 20 ہے، قیمتیں رکھیں گے، اور ڈی کی قیمت بھی 20 ہے، تو 20 بٹے 20 1، یعنی ایم کی قیمت یہاں پر 1 آئے گی، اور این کی قیمت حاصل کرنا ہے تو ہم لکھیں گے ڈی این بٹے ڈی۔ ڈی این کی قیمت 80 ہے اور ڈی کی قیمت 20 ہے، تو 20 چوک 80، اس طرح سے این کی قیمت 4 حاصل ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 3۔ ذیل کے عملی سرگرمی مکمل کرنا ہے۔ اس عملی سرگرمی میں ہمیں ڈی دیا ہوا ہے، یہاں پہ 3 کا 5 کے ساتھ ضرب ہوگا، تو 3 ضرب یہاں پہ 5، اور ساتھ ہی ساتھ یہ 2 ضرب 4، تو ضابطے کا تفریق درمیان میں ہے، یہاں پہ 2 لکھا جائے گا۔ 3 پنجے 15، تفریق 4 دونی 8، تو اس طرح سے -8 تو یہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ خالی چوکون میں 15 آئے گا، 15 -8 جب تفریق کریں گے تو یہ ہمیں جواب دے گا 7۔ اس طرح سے
जवाब हासिल होगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। सरगर्मी मुकम्मिल करना है। फिर से यहाँ मुरब्बा कालिब दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 3 ज़रब -2, तो खाली चौकोन पहले में -2 आएगा। तफरीक ज़ाब्ते का है, 1 ज़रब 4 करते हैं तो यहाँ पे खाली चौकोन में 1 आएगा। 3 ज़रब -2 जो है ये -6 हमें जवाब देगा, खाली चौकोन में लिखा जाएगा। 4 का 4 तो ज़ाब्ते का मनफी ये आ गया, और 4 -4 और -6 जमा होंगे, -10 खाली चौकोन में जवाब लिखा जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 5 में फिर से हमें एक सरगर्मी दी हुई है। यहाँ पर मसावात में x की कीमत 5 रखना है। तो इस तरह से इस मसावात में जहाँ पर x है वहाँ 5 रखेंगे तो 3 ज़रब x है, 3 ज़रब x की कीमत 5 रखी जाएगी, जमा 2y बराबर 29। 3 पंजे 15 होता है, खाली चौकोन में 15 लिखेंगे, जमा 2y बराबर 29। 15 दाएं तरफ आएगा, 29 के साथ तफरीक होगा, लिखा जाएगा 2y बराबर 29 तफरीक 15, और यहाँ दोनों की तफरीक होगी। तफरीक होने से हमें जवाब मिलेगा दोनों का फ़र्क 14, 2y बराबर 14। y के साथ 2 ज़रब में है, तकसीम में जाएगा तो ये हो जाएगा y बराबर 14/2, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे तो हमें y की कीमत 7 हासिल होगी। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 2 का बे। ज़ैल में कोई 4 ज़िमनी सवालात हल करना है। हर सवाल के जवाब को 2 नंबर होते हैं और यहाँ हमें हल करके जवाब हासिल करना होता है। ज़ैल में हमज़ाद मसावात क्रैमर के उसूल के तरीके से हल करने के लिए dx और dy की कीमतें हमें मालूम करना है। जो मसावात हमें दी हुई है इसे हम तरतीब से एक के नीचे एक लिख लेंगे। 3x तफरीक 4y बराबर 10, इसी तरह से 4x जमा 3y बराबर 5। ये दोनों मसावात क्रैमर के उसूल से जब भी हम लिखेंगे तो 2 मुतगय्यरी ख़ती मसावात में ax जमा by बराबर c, यहाँ c की कीमत दाएं तरफ लेकर आना है क्योंकि सवाल में पहले से ही तरतीब इस तरह से दी हुई है, तो यहाँ कोई हमने तरमीम नहीं किए और मसावात को एक के नीचे एक लिख लिए। अब हमें dx और dy की कीमत हासिल करना है तो यहाँ पे हम सबसे पहले मुरब्बा कालिब x मुतगय्यर के लिए यानी dx हासिल करेंगे। जब हम x हासिल करते हैं तब x के ज़रीब को छोड़ दीजिए और यहाँ c के हिसाब से पहले 10-5 लिखेंगे और फिर y के ज़रीब दूसरे सुतून में लिखेंगे। इसी तरह से इसको हल किया जाएगा। मुरब्बा कालिब को 10 ज़रब 3 तफरीक -4 ज़रब 5, और इस तरह से ये 30 हो जाएगा। 2 मनफी अलामतें ज़रब में आ गई, मुस्बित में तब्दील हो जाएगी। 4 पंजे 20 और दोनों की जमा करने पर dx हमें 50 हासिल होगा। इसी तरह से dy हमें हासिल करना है तो dy हासिल करने के लिए y के ज़रीब को छोड़ दीजिए। पहले सुतून में x लिखिए 3-4 और दूसरे सुतून में c मुस्तकिल की कीमत है 10-5, और इस तरह से 3 ज़रब 5 तफरीक 10 ज़रब 4, 3 ज़रब 5 और 10 ज़रब 4 इस तरह से, और दोनों के दरमियान तफरीक की अलामत रहेंगी। 3 पंजे 15 होता है, तफरीक करेंगे 10 ज़रब 4 यानी 40, और इस तरह से जब हम 15 में से 40 तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा -25। ये जवाब होगा dy का। इस तरह से dx और dy की कीमतें हमने हासिल की है। सवाल नंबर 2 में मसावात दी हुई है 2x तफरीक y बराबर 2। इसकी तरसीम के लिए हमें 4 नुकात के मुहद्दिदेन मालूम करना है, तो हमने खाना बना लिए। यहाँ पे x मुहद्दिद लिखेंगे, फिर y मुहद्दिद, और इस तरह से नुक्ता xy मुहद्दिद हम यहाँ आखिरी सुतून में लिखेंगे, और इस तरह से हमें 4 नुकात हासिल करना है तो हमने इस तरह से 4 खाने बना लिए हैं। अब यहाँ पर या तो आप x की कीमत तय कीजिए या y की कीमत, पहले किसी एक की कीमत तय कर लेते हैं। मान लीजिए हमने y की कीमत यहाँ पे तय कर ली है 0, तो जब यहाँ पे मसावात में 2x तफरीक y बराबर 2 है तो y की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x तफरीक 0 बराबर 2, और इस तरह से 2x बराबर 2, x की कीमत हमें 2/2 बराबर 1 हासिल होगी, और x की कीमत 1 हासिल हो चुकी है तो पहला मुहद्दिद हमें 1 0 हासिल हुआ। इसी तरह से हम y की कीमत 1 तय करते हैं तो मसावात जो है हमारी 2x तफरीक y बराबर 2, इसमें y की कीमत 1 रखिए तो ये हो जाएगा 2x तफरीक 1 बराबर 2,
2x बराबर 2 जमा 1 दाएं तरफ आ जाएगा 1, और इस तरह से ये 2x बराबर 3, x की कीमत 3/2 यानी 1.5, तो x की कीमत हमें 1.5 हासिल हुई। मुहद्दिद लिखेंगे हम 1.5, 1। तीसरी कीमत हम तय करते हैं। मान लीजिए x की कीमत 0 रखते हैं अब, तो यहाँ पर जो मसावात है 2x तफरीक y बराबर 2, यहाँ x की जगह 0 रखिए तो 2 के साथ 0 ज़रब में आएगा और ये 0 में तब्दील हो जाएगा। -y बराबर 2, y की कीमत चाहिए तो 2 हो जाएगा -2, और इस तरह से 0 -2 हमें जवाब हासिल होगा। चौथा नुक्ता हासिल करने के लिए अब हम y की कीमत 2 रखते हैं। मसावात है 2x तफरीक y बराबर 2, y की कीमत 2 रखिए, -2 बराबर 2, 2x बराबर 2 जमा 2, -2 दाएं तरफ आ जाएगा, 2x बराबर 2 जमा 2 4 हो जाएगा। x की कीमत 4/2, 2 दूनी 4 होता है। इस तरह से x की कीमत भी 2 हासिल होगी और मुहद्दिद मिलेगा 2,2। इस तरह से दी हुई मसावात के लिए हम तरसीम बनाने के लिए 4 नुकात के मुहद्दिदेन मसावात में कीमतें रखकर हासिल किए हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3, जो मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करना है। मुरब्बा कालिब अभी तक के हमने हर बार मालूम किए हैं। इस तरह से सवाल है, हमें पता है मुरब्बा कालिब में हम किस तरह इसे हल करते हैं। पहले सुतून की पहली कीमत दूसरे सुतून की दूसरी कीमत के साथ ज़रब होगा, बीच में तफरीक की अलामत आएगी। दूसरे सुतून की पहली कीमत पहले सुतून की दूसरी कीमत के साथ ज़रब होगा। यहाँ कसरे आ गई, हमें पता है ज़रब कसर पे किस तरह होता है। शुमार कुनिंदा से, और नसब नुमा से ज़रब होगा। 7 का 7, 3 दूनी 6। तफरीक का अमल वही अमल यहाँ होगा, कसरों का ज़रब। शुमार कुनिंदा से, नसब नुमा से ज़रब होगा। 5 तिरिक 15 बटे 3 दूनी 6। यहाँ पे अब हम कसरों पर तफरीक का अमल करेंगे। दोनों का नसब नुमा मसावी है, इसलिए नसब नुमा को मुश्तरिक लेकर एक बार लिखा जाएगा और ऊपर शुमार कुनिंदा का तफरीक किया जाएगा। और इस तरह से 7 तफरीक 15 जो है ये -8 मिलेगा बटे 6। यहाँ पे 2 के पहाड़े से 2 तिया 6, 2 चौक 8, और इस तरह से -4 बटे 3 दिए हुए मुरब्बा कालिब की कीमत होगी। चौथा सवाल, y की कीमत -2 दी हुई है, x की कीमत -1 है, dx की कीमत हमें -14 दी हुई है। हमें dy की कीमत हासिल करना है। हमें पता है क्रैमर के उसूल से जब हम x और y हासिल करते हैं तो उसे हम किस तरह हासिल करते हैं। x की कीमत जो है हमारे पास dx बटे d होती है और y की कीमत हमारे पास dy बटे d होती है। यहाँ हमें dx मालूम है, हमें dy मालूम करना है, तो dy मालूम करने के लिए हमें यहाँ d की कीमत की ज़रूरत पड़ेगी। y की कीमत हमारे पास सवाल में है, तो d हासिल करना है, तो इसके लिए हम पहले x की कीमत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि x और dx हमारे पास दिया हुआ है तो हम आसानी से d मालूम कर लेंगे। इस तरह से क्रैमर के उसूल से हमारे पास x बराबर dx बटे d होता है। यहाँ पर x की कीमत सवाल में -1 दी हुई है, बराबर dx की कीमत -14 दी हुई है बटे d। यहाँ d -1 के साथ ज़रब में आएगा और इस तरह से -14, -d बराबर -14, दोनों तरफ की मनफी अलामतें निकल जाएंगी और d की कीमत हमें 14 हासिल होगी। अब हम y की कीमत आसानी से हासिल कर सकते हैं। y के लिए मुरब्बा कालिब से y बराबर होता है क्रैमर के उसूल से dy बटे d। यहाँ पे y की कीमत सवाल में -2 दी हुई है, dy की कीमत हमें हासिल करना है और d की कीमत अभी हमने हासिल करे 14। -2 के साथ तकसीम वाला 14 दाएं तरफ से बाएं तरफ ज़रब में आ जाएगा। -2 के साथ -2 ज़रब 14 बराबर dy, और इस तरह से दोनों की ज़रब होगी -28, और इस तरह से dy की कीमत हमें -28 हासिल होगी, जो इस सवाल का जवाब होगा। इसी सवाल में थोड़ी तरतीब बदलकर आपको dx भी मालूम करने के लिए दिया जा सकता है, आपको dy मालूम रहेगा। तरतीब सवाल की थोड़ी सी बदल हुई, तरतीब यही रहेगी हल करने की। इतना है कि
y की जगह हमें dx हासिल करना होगा। सवाल नंबर 5, अगर मसावात 7x जमा 2y बराबर 42 है तो इस मसावात की तरसीम पर अगर ये नुक्ता मौजूद है तो हमें a की कीमत हासिल करना है। जब भी कोई नुक्ता मसावात की तरसीम पर मौजूद होता है तो वो उस मसावात को मुतमईन करता है, और हमें पता है पहला मुहद्दिद x जाहिर करता है और दूसरा मुहद्दिद y। इस तरह से मसावात 7x जमा 2y बराबर 42 की तरसीम पर यह नुक्ता वाक़े है तो x की कीमत 4 और y की कीमत a रखने पर 7 ज़रब 4 जमा 2 ज़रब y की जगह a आ जाएगा बराबर 42। 7 चौक 28 होता है, जमा 2a बराबर 42, 2a बराबर 42 तफरीक 28, बाएं तरफ से दाएं तरफ मनफी में आ जाएगा। 42 के साथ 28 तफरीक होगा, 2a बराबर 42 में से 28 तफरीक करे तो 14 हासिल होगा। a की कीमत 14/2, 2 का पहाड़ा पड़े तो a की कीमत 7 हासिल होगी। इस तरह से सवाल नंबर 5 का ये मुकम्मिल जवाब।